Hello students, welcome to our online chemistry lecture. I am Dr. Tripti Lavankar and today we are going to start our chapter number 1, some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry itself gives its meaning, this word, basic. That means in this chapter we will study some basic part related with the chemistry. Means in that we will study mole concept, again what will be the classification of matter, then SI units, physical quantities, physical properties of matter, chemical properties of matter, some laws of chemistry, and finally about the mole concept. And mole concept is very important concept throughout the chemistry. But before that, I would like to tell you, just think about our life, okay, our human life, human beings की जो life है, just think about that कि without air, without medicine, without water, what will be the condition? क्या होगा? अगर human being है या living being, in short we can say living being, without air, without water, without medicine, क्या होगा? क्या होगी condition? इम्पॉसिबल कंडीशन होगी, थिंक भी नहीं कर सकते कि विदाउट एयर कैसे सरवाइव करेंगे, बिकॉज फ्रॉम एयर क्या यूज करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन फॉर सर्वाइव ना, ब्रीदिंग के लिए क्या यूज होता है? ऑक्सीजन. व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, राइट? फ्रॉम एयर जो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते फॉर सर्वाइव, दिस इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. फॉर ड्रिंकिंग पर्पज वी हैव टू यूज वाटर, right? And water is nothing but a HOH, hydrogen, oxygen, and oxygen, hydrogen, right? Again, the part of chemistry. Medicines, without medicines, diseases कैसे cure होंगे? Possible ही नहीं है. So, chemistry is everywhere. That's what I'm trying to say. Chemistry is everywhere, and chemistry is very important. This is very important subject. Now, what is the meaning of chemistry? How will you define the chemistry? कैसे डिफाइन करोगे केमिस्ट्री को? अब ये तो 7th 8th स्टैंडर्ड में ही आप लोगों का हो चुका होगा, जब से साइंस आपके स्टडी में इंक्लूड हुआ होगा. So what is this? Chemistry is the branch of science, right? Chemistry is the branch of science, or it is related with the study of matter, or we can say it is the branch of science which deals with the study of matter, its composition, its properties, and the changes which it undergoes in composition as well as in energy during various processes. What it is meaning? केमिस्ट्री ब्रांच है किसकी? साइंस की, राइट? और इसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है मैटर की स्टडी करने वाले हो, और मैटर के कंपोजिशन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी, और जो चेंजेस उसमें आते हैं, उसके कंपोजिशन में जो चेंजेस आएंगे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस, इसका टोटल स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल डायमंड, राइट? डायमंड ऐसे विद इन 1 मिनट या विद इन 1 डे तो नहीं बनता है ना. ये जो बनता है डायमंड, ये बहुत सालों बाद बनता है. एंड इट स्टार्टिंग मटेरियल इज कोल. कोल को जब बहुत सालों तक अंडर प्रेशर और अंडर हीट रखा जाएगा, उसके बाद उसका डायमंड में कन्वर्जन हो जाए. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन. Coal is converted into a diamond form. That means it undergo a composition is as well as in energies during various processes. That means changes है ना, ये changes हो रहे. So ये सब स्टडी हम लोग किस में करने वाले हैं? केमिस्ट्री में करने वाले हैं. Again, atoms, molecules, elements, substances, all these are which we'll study in chemistry.
Now, this chemistry is very important subject. How it is very important? Just think. It's knowledge. That means जो chemistry का knowledge है ना, it is very essential for the studies of physics, biological sciences, applied sciences, geology, engineering, स्पेस साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, मतलब इसके नॉलेज के विदाउट इस नॉलेज किसी सब्जेक्ट का स्टडी कंप्लीट ही नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई दिस केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज सेंट्रल साइंस. केमिस्ट्री को इसीलिए बोला जाता है कि केमिस्ट्री इज ए सेंट्रल साइंस. दैट मीन्स इट्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन द स्टडीज ऑफ फिजिक्स, in the studies of biology, geology, environmental science, engineering science, space science, whatever. Okay, so chemistry is called as the central science because the basic knowledge of chemistry is essential for development of subjects. Which subjects? Like physics, biology, geology, engineering, environmental science, and many other subjects. Understood? So, because of that reason, chemistry is called as central science. I hope आपको समझ में आया होगा. Okay, understood? Now, during a 20th century, the knowledge about chemistry has increased so much that the subject chemistry is divided into several branches. कौन से ब्रांच में डिवाइड किया जाता है? So chemistry is traditionally classified as physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, and biochemistry. There are 5 core branches of chemistry. What I am trying to say, there are 5 core branches of chemistry. One is physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, and biochemistry. Now, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? किसका स्टडी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं? इन फिजिकल केमिस्ट्री is the study of principles underlying chemistry. It deals with the studies of properties of matter, again atoms का study करेंगे, molecules, and the fundamental concepts related to electrons, energies, and dynamics. That means in this branch of chemistry, which branch? Physical chemistry, ये जो branch of chemistry है, that deals with the structure of matter and the energy changes and the theories, properties of matter, electrons, atoms, इसका हम लोग पूरा study करेंगे in physical chemistry. Now the second branch, core branch, is inorganic chemistry. In inorganic chemistry is the study of all substances which are not organic. Which are not organic मतलब other than carbon compounds, जो बाकी के एलिमेंट्स है, इसका पूरा स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे. और आप लोगों को पता है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. ओके, सो केमिस्ट्री के सिवाय बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है, इसका पूरा का पूरा स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे. सो आई विल डिफाइन दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the chemistry of elements other than carbon and their compounds. Third one is the core branch is organic chemistry. अब इनऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन को छोड़ के अदर एलिमेंट्स का स्टडी करने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक में किसका स्टडी करेंगे?
कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का. And as we know, carbon having a tendency, carbon having a most important property, that is catenation. और catenation मतलब क्या है कि वो ऐसे नंबर ऑफ कार्बन्स को खुद के साथ, एक कार्बन खुद के साथ नंबर ऑफ कार्बन्स को अटैच कर सकता है, मिलियंस ऑफ कार्बन्स अटैच कर सकता है. That is the catenation property, right? So because of that, inorganic chemistry, that means in organic chemistry, हाँ, क्या स्टडी करने वाले हैं? दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. मतलब यहाँ पे कार्बन रहेगी मेन. कार्बन इज द आत्मा, सोल बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. कार्बन ही क्या है? आत्मा है. और उसके आजू बाजू में फिर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, अदर एलिमेंट्स रहेंगे, बट कार्बन मेन रहेगा. इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स रहेंगे वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन ऑर्गेनिक chemistry. Next one is the analytical chemistry. In analytical chemistry, or this is the branch of chemistry that deals with the study of separation, identification and quantitative determination of the composition of different substances. मतलब डिफरेंट टेक्निक्स जो रहेगी ना सब्सटेंस को सेपरेट करने की, या उसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है, हाउ मच अमाउंट में वो प्रेजेंट है, तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी करना है. तो ये सब स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में. बायोकेमिस्ट्री, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ द सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहेगा तो आपको उसमें पता है ना कि क्या रहता है, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड ये पूरा सब्जेक्ट है, राइट? तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा कि सब्सटेंस की केमिस्ट्री, बट कौन से कंपाउंड्स के, कौन से सब्सटेंसेस की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका केमिस्ट्री स्टडी करेंगे हम लोग इन बायोकेमिस्ट्री. अंडरस्टूड? सो दीज आर द 5 कोर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कि अब हम लोग जिसके केमिस्ट्री में जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं वो स्पीसीज का नाम है मैटर. कि हम लोग किसका स्टडी करने वाले हैं? मैटर का स्टडी करने वाले. सो व्हाट इज मैटर? क्या होता है मैटर? मैटर इज द एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज, possesses mass and can be felt by one or more of our sense is matter. Or in general, or in simple language, we can say that matter occupies a space and has a mass. That means anything that can occupies a space in universe and has a mass called as matter. Okay. Examples: air, water, living things, metal, books, table, chalk, anything जो भी आजू बाजू में आपके है, that is all matter. मैटर क्या है? कि जो ऑक्युपाई करता है स्पेस. कि फॉर एग्जांपल अब मेरे हाथ में है ये बॉटल, तो बॉटल का कुछ मास होगा और बॉटल ने उतनी स्पेस ऑक्युपाई की है यूनिवर्स में, सो दिस इज मैटर, राइट? टेबल को भी मास है और उसने सम स्पेस ऑक्युपाई की है, तो अगेन मैटर. सो मैटर इज एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ भी हो सकता है जिसको मास है और वो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है. नाउ द क्लासिफिकेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब क्लासिफिकेशन तो पता है आप लोगों को, बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर हैज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. कौन से वो तो बचपन से सुनते आ रहे हो आप लोग कि मैटर हैविंग 3 स्टेट्स, वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? मैटर हैविंग 3 states, one is solid, second one is liquid and third one is gas. So you are all aware about that कि matter exists in 3 states. Now in solid state क्या होता है? The molecules or the particles क्या रहते हैं? They are constituent atoms or molecules are tightly held in a perfect order, right? For example, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग in this diagram, as you can see on the screen. Here, these are the balls here.
they are arranged in a definite manner and they are very closely held together, right? So these are the constituent atoms. बोल सकते हैं इसको कि ये जो constituent atoms है या molecules है, they are tightly held in a perfect order. Perfect order मतलब एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन, right? Perfectly ordered, and therefore they possesses a definite shape, right? That means fixed shape, definite volume, and having a rigid in nature, right? So solids are rigid in nature, having a fixed shape and fixed volume. Understood? Second one is liquid state. अब liquid state क्या होता है कि in liquid state the particles close to each other and they can move around within the liquid. यहाँ पे देखो ये पार्टिकल्स क्लोज्ड है बट सॉलिड से थोड़ा कम ही क्लोज्ड है. सॉलिड में बहुत एक दूसरे से चिपके हुए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो भी गैप है. बट बोल सकते कि दे आर क्लोज टू ईच अदर, बट ये क्या कर सकते हैं, दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड. दे कैन मूव, ये मूव कर सकते हैं ना, ये पार्टिकल ये लिक्विड यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ये मूव कर सकते कहीं भी. तो ये रिजिड हो चुके हैं. क्या सॉलिड को हम लोग रिजिड क्यों बोला कि ये एक जगह पे बैठे तो वहीं पे रहेगा. यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, दे कैन मूव. सो मूव होने के कारण दे आर नॉट रिजिड, राइट. अब ये जो बीकर में, ठीक है, बीकर में जो लिक्विड दिख रहा है अपने को, फॉर एग्जाम्पल कि वो पानी है, वाटर है, एंड कंसिडर दैट कि उसका वॉल्यूम है 1 लीटर. ठीक है, वो बीकर का वॉल्यूम है 1 लीटर. बीकर में जो पानी है ना उसका 1 लीटर वॉल्यूम है. अब उसने वॉल्यूम तो 1 लीटर है, ठीक है. अब मैं बीकर का जो पानी है, अब मैं इसको ग्लास में डाल देती हूँ. ये जो पानी है इसको ग्लास में पोर कर दो तो 1 लीटर रिमेन 1 लीटर. वॉल्यूम सेम ही रहेगा बट शेप सेम रहेगा क्या. अब ये बीकर में वाटर है तो इसने बीकर का शेप ले लिया. अब जैसे मैं इसको ग्लास में ट्रांसफर करूंगी तो वो ग्लास का शेप ले लेगा. सो शेप डेफिनेट हुआ क्या, शेप फिक्स हुआ क्या, नहीं. शेप चेंज हो सकता है डिपेंड ऑन जो भी हम लोग कंटेनर यूज कर रहे हैं, राइट. बट वॉल्यूम 1 लीटर है, यहाँ पे भी ट्रांसफर करने के बाद भी 1 लीटर ही रहेगा. सो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, लिक्विड्स क्या रहते हैं, नॉट रिजिड एंड नो फिक्स शेप एंड हैविंग ए फिक्स वॉल्यूम. एंड इन केस ऑफ gaseous state the particles are far apart as compared to those in liquids and solid state. ये जहाँ पे देखो पार्टिकल्स कितने दूर दूर है, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर है. और ये कहीं पे भी घूम सकते, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बहुत सारी स्पेस है वहां पे, राइट. तो ये क्या होगा, रिजिड तो होगा ही नहीं, नॉट रिजिड. और इसका शेप भी फिक्स नहीं होगा और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा, राइट. ये जो फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती घर पे लगाते हैं ना भगवान के सामने, तो उसमें से धुआं जो निकलता है वो कहाँ रहता है, कोई फिक्स शेप में रहता है, फिक्स वॉल्यूम में रहता है, नहीं, वो कहीं भी स्प्रेड हो जाता है. सो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, they are not rigid in nature, again having a no fixed shape and no fixed volume. Understood? So these are the 3 states of matter. Now they are interconvertible. ये जो 3 states of matter है, they are interconvertible. अब interconvertible मतलब क्या होता है कि they are converted into a one form to another form. एक दूसरे से वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो जा सकते, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकन्वर्टिबल. अब इंटरकन्वर्टिबल देखो क्या है कि सॉलिड है, राइट. सॉलिड है और अगर फॉर एग्जांपल अपने घर का एग्जांपल ले लो, आइस क्यूब्स. आइस क्यूब्स क्या रहती है, सॉलिड इन नेचर. उसको फ्रीजर से बाहर निकाल लो, क्या होगा, आफ्टर सम टाइम उसका मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. हो गया लिक्विड में कन्वर्ट, ठीक है. मेल्ट होके वो लिक्विड में चला जाएगा. और ये जो लिक्विड है इसको आप हीट करो, ये जो लिक्विड है उसको आप हीट करो. जैसे आप पानी को हीट करते हो, बॉईल करते हो, तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम उसके वाटर में वेपर्स में कन्वर्जन हो जाता है, वाटर का वेपर्स में कन्वर्जन होता है, दैट मीन्स इन द गैसियस फॉर्म, राइट. अब ये जो गैस यहाँ पे तैयार हुआ है, आप उसको थोड़ा ठंडा करो.
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, घर पे एक आधे पतीले में पानी को बॉईल करने के लिए रख दो और उसके ऊपर एक आधा लीड रख दो, कोई ढक्कन रख दो, ठीक है। क्या होगा, जब बॉइलिंग स्टार्ट होगा तो सब वाटर वेपर्स प्लेट पे कलेक्ट हो जाएंगे और वो जो प्लेट या ढक्कन रहेगा उसको आप रिमूव करके ऐसे एयर में छोड़ दो ठंडा होने के लिए। वो जो वाटर वेपर्स कलेक्ट हुए थे ना, उसका आफ्टर कूलिंग लिक्विफिकेशन हो जाता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। मीन्स ये जो गैस तैयार हुआ था, अगर आप उसको कूल करते हो देन इट अंडरगो कंडेंसेशन, मतलब कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। और फिर से ये लिक्विड को अगर आप फ्रीज करते हो, फ्रीजर में रखे, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड स्टेट। सो दैट्स व्हाई आई एम से these states of matters, they are interconvertible. Understood? Now ये जो क्लासिफिकेशन था on the basis of physical property. Now the classification of matter based on chemical composition. Classification of matter based on chemical composition. Classification on the basis of chemical composition. Matter. What is matter? Which occupies a space and possesses a mass, which are exist in solid, liquids and gaseous form. Right? Now, on the basis of chemical compositions, it is divided into further two ways. One is pure substance, another one is mixture. One is pure substance, another one is mixture. Okay. Now this is pure substance and this is mixture. Now what is the meaning of pure substance? The word itself gives its meaning. It suggests its meaning. Pure means एकदम pure, right? मतलब वहां पे कोई impurity नहीं होगी. Matter having an invariant chemical composition and distinct properties. मतलब क्या है इसका मीनिंग क्या है? Pure substances have a definite chemical composition. मतलब इसमें जो भी कंपोजिशन रहेगा वो डेफिनेट रहेगा. फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर मतलब क्या है? H2O, राइट? वाटर क्या है? H2O. तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन का कितना है? 1. तो इसका रेशियो क्या हुआ? 2:1, राइट? सो 2:1 रेशो. अब ये वाटर घर का एक्वागार्ड का हो या नदी रिवर का हो या ओशन वाटर हो या कोई भी वाटर हो, तो कंपोजिशन क्या रहेगा उसका? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रहेगा, दैट इज 2:1. सो ये हो गया प्योर सब्सटेंसेस हैविंग ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज रहती है वो ओरिजिन के साथ ही रहते हैं, मतलब उनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज रहती है. नाउ दीज प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू वेज अगेन. वन इज एलिमेंट एंड अनदर वन इज कंपाउंड. एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब एलिमेंट्स तो सबको पता है कि कितने एलिमेंट्स है अपने पीरियोडिक टेबल में? 118 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. तो ऑल दीज आर इन प्योर स्टेट, बट वो सिंगल रहते. प्योर एलिमेंट्स क्या रहते? सिंगल कंपोनेंट्स. मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस which cannot be broken down into a simpler substance by ordinary chemical method. That means elements are the fundamental substances which cannot be separated, which cannot be broken down into simpler substances by chemical method. जिसको आप लोग break down नहीं कर सकते हो, एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते हो, बट वो प्योर फॉर्म में रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, राइट? गोल्ड है. अब गोल्ड क्या रहता है? प्योर रहता है. उसकी जो भी ज्वेलरी हम लोग गोल्ड से बनाते हैं वो 99.9 प्योरिटी शो करते हैं. हाँ, अब अगर आपका सोना उसमें मिल आउट करता होगा तो वो मुझे नहीं पता, ठीक है. बट गोल्ड इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि प्योरिटी गोल्ड इज वेरी प्योर. लाइक Fe, राइट? लाइक Fe, कॉपर. These are the examples of elements
जिसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। आप गोल्ड को तोड़ोगे क्या, गोल्ड में से जो गोल्ड का एलिमेंट है उसको आप लोग एक कोई और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। So that means elements are the fundamental substances, cannot be separated into simpler substances by a chemical method. Second one is compound. प्योर सब्सटेंस में उसका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, कंपाउंड्स। अब कंपाउंड मतलब क्या हो गया कि मोर देन वन एलिमेंट, राइट, एक से ज्यादा, तभी कंपाउंड तैयार होगा ना। जैसे वाटर, वाटर में कौन है, H2O में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, राइट। वाटर में कौन है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो आप उसको तोड़ सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो कंपाउंड्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ए केमिकल मेथड, ओके। एंड टू कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इट इज मेड फ्रॉम 2 or 3 एलिमेंट्स दैट आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। जैसे कि ये वाटर, ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, बट किस प्रोपोर्शन में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जैसे 2:1, 1:1, लाइक दैट। वो डेफिनेट ही रहेगा, कहीं पे भी मिले तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा, तो ही हम लोग उसको कंपाउंड्स बोल सकते हैं। नाउ सी हियर, सब्सटेंस कंपाउंड्स क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट in a fixed proportion, can be separated into simpler substances and elements only by chemical method. एक आधी केमिकल मेथड यूज करके हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं into 8 simpler substances or simpler elements. Okay, so this is called as the compound. एलिमेंट्स में हम लोग आयरन मेटल Fe भी बोल सकते कि तो प्योर होगा, राइट। और NaCl कंपाउंड का एग्जांपल देखो, NaCl। अब NaCl का रेशियो क्या है, 1:1, राइट। 1:8 मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन में है। फिर NaCl ये कहीं से भी मिल जाए वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा। सो एग्जांपल इज वाटर, NaCl फॉर कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स में गोल्ड लिखो, Fe लिख सकते हो, कैल्शियम, कॉपर, जो भी है, जो सिंपल एलिमेंट्स है। नाउ मैटर का सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, मिक्सचर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्या देखा हम लोगों ने, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब इस साइड में, राइट हैंड साइड में, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होगा, अब मिक्सचर तो अगेन उस खुद से वर्ड से बता रहे हैं कि मिक्सचर मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, राइट। मिक्सचर जैसे बेस्ट एग्जांपल इज अवर चूड़ा। डीमार्ट में तो बहुत सारे चूड़ा के वेराइटीज रहते हैं, तो उसमें मिक्सचर ही रहता है ना। अपना ग्राउंड नट्स रहते हैं, देन बाकी के सेव रहती है, पपड़ी रहती है, बहुत सारे रहते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट से बनता है अपना मिक्सचर, ओके। तो मिक्सचर मतलब क्या है, मिक्सचर कंटेन 2 or more substances in different, in not fixed proportion and which can be separated out by a physical method. मतलब क्या है कि matter consisting of 2 or more pure substances that retain their individual identities and can be separated by physical method. एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिक्सचर बनता है एंड they can be separated out by any physical method. मिक्सचर जैसे ऑयल एंड वाटर, मिल्क में भी वाटर रहता है। अगेन जो हम लोग चावल चुनते हैं, चावल में भी चावल और कंकड़ का मिक्सचर रहता है, राइट। सैंड, डर्ट वाटर में अपना डर्ट पार्टिकल्स और वाटर का मिक्सचर है ना, पर वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है कि नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम। सो दे आर नॉट इन फिक्स प्रोपोर्शन, बट हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं ना बाय फिजिकल मेथड। जैसे सैंड, डर्ट वाटर है तो उसको फिल्टर आउट करके हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर चावल में कंकर है तो उसको फिजिकल मेथड से मतलब हाथ से ही साफ कर सकते हैं, अलग कर सकते, सेपरेट आउट कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड एज द मिक्सचर। नाउ दिस मिक्सचर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ways. One is homogeneous mixture, another one is heterogeneous mixture. Homogeneous मतलब homo means uniform, uniform in nature,
दैट मीन्स ये मिक्सचर रहेगा, मोर देन वन कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, बट वो जो कंपोनेंट्स रहेंगे ना वो एक दूसरे में इतने घुल मिल जाएंगे कि वो एक दिखे भी नहीं सकेगा। आप अगर नेकेड आई से देखोगे कि हाँ इसमें एक या दो कंपोनेंट है, पता भी नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इन नेचर। Mixtures having a uniform composition and properties throughout, that is called as homogeneous mixture or solution. Okay, best example is milk and water. अब अपना दूध वाला जो है मिल्क में इतना सारा वाटर डालता है तो पता चलता है क्या कि एक साइड में मिल्क है और एक साइड में वाटर है? नहीं पता चलता, इसलिए तो डालता जाता है ना। प्योर मिल्क मिलता है अपने को नहीं। दैट मीन्स होमोजेनियस, राइट? होमोजेनियस मिक्सचर। अगेन लाइम जूस पीते हो सब लोग, घर पे बनाते, तो उसके लिए हम लोग शुगर वाटर में डिजोल्व करते। शुगर वाटर में डिजोल्व होने के बाद अगर कोई अननोन आया जिसको पता ही नहीं कि ये किसका सॉल्यूशन, उसको बोला जाए कि भाई ये पहचानो कि आइडेंटिफाई करो वेदर इट इज प्योर वाटर और शुगर सॉल्यूशन, तो वो तो बोलेगा ये तो प्योर वाटर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि शुगर उसमें पूरी की पूरी डिजोल्व हो जाएगी, हो रही थी, मतलब हो गई थी, राइट? अगर वो टेस्ट करेगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये स्वीट है, मतलब ये शुगर सॉल्यूशन है। बट नेकेड ऐसे बोला जाए तो वो बोलेगा नहीं ये वाटर ही है, राइट? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व हुआ है शुगर इन वाटर। तो दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर। अगेन सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। जैसे घर पे अपना जो NaCl सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, आप उसको वाटर में डिजोल्व करो और देखो, पता चलता है कि उसमें सॉल्ट डाला है करके डिजोल्व होने के बाद नहीं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर। एप्पल जूस, जूस में भी एप्पल है और वाटर का भी कंटेंट रहता है, तो एक दूसरे में अलग थोड़ा हो जाते। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड मिक्सचर इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब जो यूनिफॉर्म में नहीं है, which are not in uniform in nature, that is called as heterogeneous mixture. Mixture which are not uniform in composition and properties throughout, that is called as heterogeneous mixture. For example, oil and water. Oil and water, आप लोगों ने देखा होगा oil and water क्या होता है। आप उसको दिन रात भी स्टर करते बैठो, वो थोड़ी देर के लिए घुल मिल जाएंगे और 2 सेकंड में ही सेपरेट आउट हो जाएंगे, जैसे आपका स्टरिंग बंद हो जाएगा। तो सेपरेट आउट होने के बाद क्या होता है, सरफेस लेयर रहती है ऑयल की और बॉटम लेयर रहती है वाटर की, राइट? ऑयल और वाटर आप लोग इसको सेपरेट आउट कर सकते हो, ऊपर की लेयर निकाल लो, नीचे की लेयर निकाल लो, दोनों सेपरेट हो जाएंगे वाटर और ऑयल। वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते ही नहीं है। सो मिक्स नहीं होते मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, और यूनिफॉर्म नहीं है दैट मीन्स दिस इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सैलेड ड्रेसिंग, सैलेड ड्रेसिंग में भी सैलेड अलग रहती है, मिल्क अलग रहता है, वो जो भी डालते हैं उसमें वो सब अलग रहते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं रहते ना वो। So this is also heterogeneous mixture. So this is all about the classification of matter on the basis of chemical composition. I repeat one more time. Matter is classified into two ways. One is pure substance, another one is mixture. Pure substances are further classified into two ways. One is element and compounds. अब pure substance क्या रहते हैं? जिनका definite chemical composition रहता है and they are in pure in nature. So elements are which cannot be separated out or which cannot be broken down into simpler substances. Compounds क्या होते हैं? They are present in fixed proportion, definite proportion, but which can be separated out into simpler substances by a physical method. Mixtures consisting of two or more pure substances which are not having a definite compositions. Okay. And they are further classified into two ways, again homogeneous and heterogeneous. Homogeneous means in that components are uniform in nature, and heterogeneous components are not in uniform in nature. Understood? I hope you must have understood, students. Now these different kinds of matter have a characteristics properties. अब हम लोगों ने मैटर को देखा, अब इनकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, राइट? सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. सो देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. वन इज केमिकल प्रॉपर्टी, अनदर वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी. अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज which can be measured or observed without changing the chemical composition of substance.
Physical properties are those properties which can be measured or observed without changing the chemical composition of substance. मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग ऑब्जर्व करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कलर ऑर्डर, जैसे कलर है, कपड़ों का कलर रहते तो आप उसको, आपको ये रेड कलर ये देखने के लिए उसको कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है क्या? नहीं, आप उसको सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो तो बोल सकते कि यस दिस इज रेड कलर। ऑर्डर, अगर जब कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको कुछ केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती, नाक को जो महसूस हो जाए हम लोग बोल देते कि यस दिस इज स्वीटी स्मेल, दिस इज बिटर स्मेल, लाइक दैट, जो भी आता है ना। सो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करके नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, these are the physical properties which can be measured by observation. Okay, chemical properties मतलब क्या होगा? जिसमें chemical treatment होगी, right? chemical properties में क्या करना है कि जिसमें हम लोग chemical treatments करेंगे। In chemical properties, or the chemical properties are the properties where substances undergo a chemical change. So that's why because of that change they change their chemical composition. Okay, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए अपने को केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सो इट अंडरगो केमिकल चेंज बाय एडिंग अदर केमिकल। फॉर एग्जांपल जैसे एसिड और बेसिस है, राइट। तो एसिड्स और बेसिस अगर अपने को आइडेंटिफाई करने कोई कंपाउंड में वो एसिडिक या बेसिक है, तो फॉर एग्जांपल एसिडिक कंपोनेंट है तो मुझे उसको चेक करना है कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिस, तो मुझे उसमें बेस डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो मिक्स हो जाए then I can say कि yes this is basic in nature and it produces salt and water, तो उसका केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हो गया ना, फिर वो एसिड रहा क्या? नहीं, उसकी रिएक्शन होगी बेस के साथ, देन मुझे पता चला कि यस दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे स्टडी करना पड़ेगा? विच अंडरगो चेंज, केमिकल चेंज बाय एडिंग ए केमिकल सब्सटेंस। ओके, एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? दैट डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ग्रोइंग, मूविंग, रिप्रोड्यूस, breathing and responding. Okay, so these are the properties of matter. Now what are physical properties? ये अभी हम लोगों ने देखा physical property, फिर से रिपीट करती हूँ। physical property is a property or characteristics of the object or substance that can be observed, described and measured without changing the matter, right? मतलब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, जिसको हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करके स्टडी करेंगे विदाउट चेंजिंग ए मैटर, मतलब उसमें कुछ चेंजेस, बिना लाए चेंजेस उसको हम लोग स्टडी कर सकते। फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर एक रूम की लेंथ काउंट करना है तो मैं सिर्फ टेप लूंगी और टेप से लेंथ काउंट कर दूंगी, हो गया। कुछ चेंज होगा कि उसके लेंथ में या प्रॉपर्टी में, रूम की प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। इट इज कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टी. So there are some fundamental physical quantities. One is mass, length, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. So these properties are quantitative in nature. Many properties of matters are quantitative in nature. Quantitative मतलब quantity से हम लोग, क्वांटिटी रहती है ना, जैसे मास क्वांटिटी है, लेंथ क्वांटिटी है, उससे मेजर कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें आता है फर्स्ट मास। मास मतलब जैसे आप लोग 1 kg आपको बोले जाते हैं, मम्मी बोलती है आपकी कि जाओ 5 kg शुगर लेके आओ, राइट। तो आप दुकान में जाते हो, दुकान वाले को बोलते हो भैया 5 kg शुगर दो, तो वो क्या करता है, वो बैलेंस पे पॉलीथीन में शुगर डाल के मेजर करके देता है। तो व्हाट इज दिस? 5 kg इज द मास ऑफ शुगर, राइट। तो उसके लिए यूज होता है ट्रिपल बीम बैलेंस टू मेजर, और मेजर्ड विच इज इन ग्राम आल्सो। केजी में हम लोग नोट डाउन करते हैं मास को, राइट। अगेन ग्राम में भी नोट डाउन करते हैं मास को, ग्राम में भी बोलते हैं ना, अगर स्मॉल अमाउंट में लेना जाए तो हम लोग ग्राम में लेंगे, और अगर लार्ज अमाउंट में लेना है तो केजी में लेंगे, राइट। सो देयर आर 7 fundamental physical quantities and
their measurements and units. अब ये जो यूनिट्स है ये SI यूनिट्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बट SI ही क्यों? नाउ सी, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर मैंने आपको बताया, जिसको हम लोग मेजर करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है, फॉर एग्जांपल कोई भी किसी का भी इन जनरल नाम ले लेती हूँ मैं, किसी से वो मैच नहीं होगा, किसी का भी ले लेती हूँ, जैसे साक्षी तायवाड़ी. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यस शी इज साक्षी, ठीक है, ये साक्षी नाम की लड़की है, तो उसका क्या पता चलेगा मुझे कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते? समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, राइट. जब तक उसका सरनेम नहीं लगता उसके पीछे, साक्षी के पीछे मतलब नाम के पीछे उसका सरनेम नहीं लगेगा, तब तक समझ में नहीं आएगा कि किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट. वैसे ही ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मास कि मम्मी ने बोला कि 5 मास शुगर लेके आओ, 5 शुगर लेके आओ, क्या समझ में आएगा? वेदर इट इज ग्राम, किलोग्राम, कुछ समझ में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि 5 के पीछे कोई यूनिट नहीं लगा है, राइट. जैसे टेम्परेचर है कि रूम टेम्परेचर कितना है? 27. व्हाट 27 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है या केल्विन है? व्हाट? तो ये 27 बोलने से काम नहीं होगा, उसके पीछे यूनिट लगाना पड़ेगा ना. सो दैट इज द नीड ऑफ यूनिट्स. अब इंडिया में लेंथ को मेजर किया मैंने मीटर में, और अगर दूसरे कंट्रीज में वो सेंटीमीटर में करते हैं, या और दूसरा कुछ यूनिट है दूसरे कंट्री में और दूसरा कुछ, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं रहेगा ना. फिर यहाँ से वहां जाओगे तो चेंज होगा, वहां से वहां जाओगे तो चेंज हो जाएगा. सो कुछ कॉमन रखने के लिए ऐसे यूनिवर्सल या पूरे वर्ल्ड में कॉमन टर्म रखने के लिए ऐसा यूनिट का इन्वेंशन हुआ है. दैट मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जिसको बोलते हैं, जो सभी साइंटिस्ट लोगों ने एक्सेप्ट किया है और सभी कंट्रीज में सेम यूनिट्स का यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ SI system, that is called as the SI system, or we can say a system international units. So fundamental units कौन से है? These units can neither be derived from one another nor can be further resolved into any other units, and these are the seven fundamental units of the SI system. कौन से? One is time. टाइम क्या है? किस में मेजर करते हैं हम लोग? सेकेंड में. सो इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ? सेकेंड, एंड सिंबल इज स्मॉल s. मास किलोग्राम, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम, सिंबल इज kg. लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ऐसा यूनिट इज मीटर, एंड सिंबल इज m, स्मॉल m. टेम्परेचर, केल्विन इज द SI यूनिट एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल K. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है ऐसा यूनिट एम्पियर, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल A से. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, ऐसा यूनिट इज कैंडेला एंड इट कैन बी नोटेड बाय ACD. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट सब्सटेंस इज मोल, और जिसको सिंबल है मोल. ये मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप ये चैप्टर में पूरा डिटेल में समझ जाओगे कि मोल क्या होता है. So these are the 7 basic fundamental units. Which of those? One is time, mass, length, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. Okay, so these are the 7 basic fundamental quantities and their units. Now the second term is derived units. अब डिराइव्ड यूनिट्स मतलब क्या होता है कि जिसको हम यूनिट्स को हम लोग डिराइव करेंगे, किसका यूज करके? 7 बेसिक फंडामेंटल्स का यूज करके हम लोग यूनिट्स को डिराइव करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स. अब ये यूनिट्स अदर देन 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होंगे. सो दीज यूनिट्स आर द फंक्शन ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट. एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स तैयार करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी. वेलोसिटी का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड, और ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, एंड द सिंबल इज MS इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स. मीटर सेकेंड इनवर्स. एरिया का यूनिट रहता है, डेफिनेशन कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ ना, तो मीटर इंटू मीटर, स्क्वायर मीटर. स्क्वायर मीटर कैसे नोट डाउन करते हैं? मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम,
Length into breadth into height, meter into meter into meter, that means cubic meter, meter cube. Density kilogram per meter, that means kilogram meter cube inverse. Energy joule, जूल को कैसे सिंबल है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. फोर्स न्यूटन, क्या है उसका यूनिट, न्यूटन, जिसको हम लोग नोट डाउन करते हैं सिंबल से केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स. फ्रीक्वेंसी हर्ट्स, इट्स सिंबल इज साइकिल पर सेकेंड. प्रेशर हैविंग ए यूनिट पास्कल, बट उसको नोट डाउन किया जाता है न्यूटन मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स. लास्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट रहता है कूलम, और जिसको हम लोग नोट डाउन करते हैं एम्पियर सेकेंड से. ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स. सो दिस आर दी डिराइव्ड यूनिट्स. सो दिस इज ऑल द वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अगर हम लोग काउंट करें तो वॉल्यूम नोट डाउन होता है. तो लेंथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट, राइट, जिसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में और हाइट को भी मीटर में. तो यूनिट क्या हुआ, मीटर क्यूब. ऐसा यूनिट इज मीटर क्यूब. 1 ml मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 ml मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम. अभी देखा हम लोगों ने डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा रहती है, लिक्विड की ज्यादा रहती है, गैस की ज्यादा रहती है, गैस की बहुत कम रहती है. डेंसिटी सॉलिड्स की ज्यादा रहती है, लिक्विड से थोड़ी कम रहती है, राइट. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होता है, डेंसिटी. तो मास किस में मेजर करते हैं हम लोग, केजी में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में. तो उसका यूनिट क्या हुआ, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर मोल और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये सीजीएस यूनिट्स में. डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम अभी आपको बताया मैंने, राइट. सो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस द वॉल्यूम. हम लोग सेंटीमीटर से भी वॉल्यूम नोट डाउन कर सकते हैं, डीएम क्यूब और लीटर सेम है, राइट. और यहाँ पे डिफरेंट एपरेटस है जिसको हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं. ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. ये है अपना मेजरिंग सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर. दिस इज और पीपेट, और ये अपनी ब्यूरेट. तो ये चारों के चारों एपरेटस यूज होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. ओके, नाउ यहाँ पे जो स्केल दिख रही है आप लोगों को, नाउ दिस इज केल्विन स्केल. सी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज केल्विन स्केल. ये वाली जो है केल्विन स्केल है, दिस इज सेल्सियस स्केल है, और दिस इज फ़ारेनहाइट स्केल है, राइट. अब केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, सेल्सियस में और केल्विन में क्या रिलेशन रहता है. तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये सबको पता होगा. 0 डिग्री सेल्सियस मतलब हाउ मच केल्विन, 273.15, राइट. अब ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है केल्विन. दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे लिखा है देखो, अगर आपको केल्विन में निकालना है तो हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 270, केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ये टर्म यूज करेंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन. ओके, तो यहाँ पे देखो स्केल पे, ये स्केल में दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, राइट. ये 0 डिग्री सेल्सियस का मार्क है. तो ये केल्विन में कितना होगा, 273.15. अब दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट. अब ये जो स्केल है, दिस इज फ़ारेनहाइट स्केल है. ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशन है उसको भी देख लो. फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन ये है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, राइट. डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन डिग्री सेल्सियस का साथ क्या है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. तो अगर ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 हो, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इंटू 0 हो जाएगा ना. तो ये इंटू 0 मतलब ये 0. तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो गया, 32 ओनली. तो एट 0 डिग्री सेल्सियस
फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगी 32। तो देखो यहाँ पे दिख रहा 32, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन रहता है 273.15 और फ़ारेनहाइट स्केल रहती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नाउ रूम टेम्परेचर कितना रहता है 25 डिग्री सेल्सियस अगर कंसिडर करते हो तो रूम टेम्परेचर है, तो वो केल्विन में कितना होगा, यूज दिस रिलेशन। यहाँ पे 25 रखो केल्विन को, सॉरी डिग्री सेल्सियस, और प्लस 273.15, इट बिकम 298 केल्विन, राइट। अब केल्विन तो हो गया, अब फ़ारेनहाइट कितना होगा, फ़ारेनहाइट तो डिग्री सेल्सियस के जगह पे हम लोग 25 रखेंगे, इसको सॉल्व करके प्लस 32 करके आंसर आता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है अपना नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे बोलते हैं ना फीवर आ गया, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फीवर आना मतलब क्या होता है 37 से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो घर पे जो हम लोग थर्मामीटर यूज करते फॉर द मेजरमेंट ऑफ फीवर और फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में रहते हैं। अब तो देख लो आपके घर पे होगा थर्मामीटर, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ही होगा, वो केल्विन या डिग्री सेल्सियस में नहीं रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ जाए तो बोलते हैं ना 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, तो वो क्या है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, सो 37 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो 370 केल्विन आता है, और वो ह्यूमन बॉडी दिखाता है मतलब इन फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो केल्विन में कितना होगा 373 केल्विन, and in degree Fahrenheit 212 degree Fahrenheit. By using this relation we can calculate the degree Fahrenheit, and using this relation we can calculate the Kelvin by putting the values of degree Celsius. Okay students, so I hope अब सबको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने अभी क्या सीखा है, right? So these are the some basic fundamental units and their fundamental quantities and their units. This is all about his today's lecture. Now in next lecture we will see the laws of chemical combination and mole concept. Okay, atomic and molecular masses and mole concept. Okay students, till then do study well.